Okay, Malik. So, good morning. Hopefully, everybody is doing good. And आशा करता हूँ कि आप तोड़ करोगे मालिक. तो भारत माता की. Yeah. Basically, the discussion of last standard. Right now, I'm not discussing any question. Okay, today we'll be starting from this time and we'll be ending at 9:30. एंड जो क्वेश्चन आज भी डिस्कस करेंगे कल वो एक साथ में डिस्कस कर लेंगे. ओके, तो राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ 450. अपना आज का एजेंडा 450 है और उसके बाद SQC 1 एंड SA 220 का पॉइंट. ओके, दैट इज बेसिकली चैप्टर 1. So first of all, we were on SA 450, but before going on 450, yesterday I gave you the brief idea how 450 comes into picture. Basically, it is about two things. One is 315 and one is 330, and along with 450. 315 is basically identifying risk of material misstatement. It is basically a starting point from where you start the audit. You can't go direct, sir, can we do the traditional audit? Answer is yes. But actually you are inputting such a resources which is not, I'm not discussing about cost benefit. Cost benefit is never a criteria for audit. That is what exactly ICI have been given by. But the criteria is after doing the 100% audit also, I'm getting the confidence same thing if I'm going with a sample based audit. So what is the logic behind if I'm going with 100% audit, I'm getting the same confidence. Going with sample based audit also I'm getting the same confidence. The better option is going with sample based audit. But to identify the sample based audit, we should not be in the dilemma where the sampling risk will be more. तो सैम्पलिंग रिस्क मतलब क्या होगा, जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगा हम वहाँ पर ज़्यादा काम करेंगे, जिधर रिस्क कम होगा वहाँ पर रिस्क वहाँ पर हम कम काम करेंगे. टेक्निकली एक सीए लगाएंगे ये नहीं लगाएंगे, लेकिन एक्चुअली हम पता कैसे करेंगे कि भाई कहाँ पर रिस्क ज़्यादा है कहाँ पर रिस्क कम है. तो इसके लिए स्टैंडर्ड 315 हमें बताता है कि आपको कुछ प्रोसीजर करने होते हैं. जैसे एग्जांपल, ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस IAOI. IAOI मतलब क्या बोलता है? ओके, स्टैंडर्ड 315 बोलता है IAOI करिए, इंक्वायरी करिए, एनालिटिकल प्रोसीजर करिए, ऑब्जर्वेशन करिए, इंस्पेक्शन करिए, एंड बेस्ड ऑन दिस 4 procedures actually see whether there is a risk or not. Basically inquiry with TCFG करिए, inquiry with internal auditor करिए, inquiry with sales personnel करिए, inquiry with IT वाला बंदा करिए, something like that. ठीक है. Okay, after this we get a criteria of 240 and 60, and after that they say to respond according to 330. Actually your complete audit is in these three standards: 315, 330 and 450. 330 says perform the audit procedure. Perform the audit procedure is basically two procedure. One is TOC and one is SP. SP focus on two criteria. One is a TOD, test of detail, and one is substantive analytical procedure. When I'm discussing about the TOC, SP and TOD or SAP or SAP as substantive analytical procedure, which we have discussed yesterday also, technically 330 का context is response to the assessed risk. Response to the assessed risk. जो भी risk आपने assess किया उसको क्या करिए, response करिए. Now after response, okay, response करना मतलब क्या करना, हमने अपना काम करना. अब काम करिए, मेहनत करिए, ओके, रिसोर्स लगाइए, ओके, CA लगाइए, आर्टिकल लगाइए, जैसे भी लगाना है. यू विल बी गेटिंग द MM से ज़्यादा मिसस्टेटमेंट, नॉट मटेरियल मिसस्टेटमेंट बट मिसस्टेटमेंट. Once you get that misstatement, now you go ahead with the evaluation of that misstatement. But now when we are discussing about evaluation of misstatement, okay, that standards come as 450. So we need to be technically competent to understand how it is working out. So first of all, okay, so please understand our example says 240 and 60 was basically in 240 there was less RMM and 60 the RMM is more. 240 RMM is less, 60 RMM is more. So basically we are working, okay, according to this. After doing 330, okay, I got the misstatement. So standard 450 says, first of all, divide this misstatements into certain criteria. Sir, what are the criteria? The criteria can be three criteria. What are the three criteria? One is factual, okay, one is factual, one is projected, and one is estimated. Okay, probably an judgmental. Okay, judgmental. So what are the three criteria actually? Matlab, whenever you get a misstatement auditor, you first try to divide or classify the misstatement into three criteria. One is factual, basically a factual misstatement. There should be a LIFO and you are following FIFO. There should be SLM, you are following WDV. This is factual. IFRF is saying LIFO, you are following FIFO. And basically, okay, you may be following FIFO, but you should give the description or notes may why you are following FIFO instead of LIFO. The notes has not been mentioned. Yani there is actually a material misstatement. There is actually a misstatement. Actually, factually misstatement है. Okay, factually misstatement है मतलब गलत है, evidence है, ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए, वो गलत है. That is called factual. Second is projected. What is the meaning of projected misstatement? Projected misstatement will be kind of like this. When there was a population of 1,000, I tested 100 sample.
Okay, based on 100, which is a representative of population, okay, I found out that 10 sample में misstatements are there. मतलब 100 चेक किए मैंने, 100 में से misstatement कितने में है? 10 में. और 100 को किसको represent किया मैंने? 1000 को. तो भाई 10 में अगर misstatement आए तो 1000 में कितने आएंगे? Probability 29. याद रखना ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता, ये प्रोबेबिलिटी मेथड होता है. प्रोबेबिलिटी मेथड मतलब क्या होगा? ओके, यानी एग्जांपल 100 आए, 100 में से 10 में मिसस्टेटमेंट मिला आपको, ये 10 में मिसस्टेटमेंट, एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये 100,000 सैंपल में से परचेज इनवॉइस है. परचेज इनवॉइस चेक कर रहे हैं हम लोग. परचेज इनवॉइस में सिग्नेचर होना जरूरी है. किसका? परचेज मैनेजर का. परचेज मैनेजर का सिग्नेचर है, तो हमें चेक क्या करना है? परचेज मैनेजर का सिग्नेचर है या नहीं है. तो हमने 100 सैंपल उठाए. In 100 samples, okay, while we are checking it out whether signature is there or not, in 10 samples we found out there was no signature. But in 10 sample, how signature was not found? 8 sample, okay, signature नहीं मिले. 2 sample में signature नहीं मिले क्योंकि वो manual invoices थे. Usually invoices कौन से आते हैं? System से. तो 2 इसमें manual मिले. तो सर हमने क्या लॉजिक लगाया? हमने पता किया ये क्यों हुए. 8 में प्रॉब्लम क्या आया, 2 में प्रॉब्लम क्या आया. तो वी आइडेंटिफाइड, ओके, 2 में ना इट इज एन एनोमली. सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनोमली? एनोमली मतलब ऐसी सिचुएशन थी जो रिकरिंग नहीं है. रिकरिंग नहीं है. एग्जांपल रिकरिंग नहीं है. ऑन वन फाइन डे द लाइट बंद हो गई. लाइट बंद हो गई. क्यों सर? लाइट चली गई, बिजली डिपार्टमेंट ने लाइट बंद कर दी, और उस दिन है ना मैनुअल रिसीट निकालनी पड़ी. तो ये लाइट जाने की परिस्थिति आपने जाके पूछा मैनेजमेंट से. मैनेजमेंट क्या, लाइट रेगुलरली जाती है? मैनेजमेंट बोला नहीं. ओके, देखा बार कभी चले जाती है. लाइट जाना इस दिवाली. ओके, तो फिर ये एनोमली मानी जाएगी. तो एनोमली है ना, एनोमली मतलब क्या? कुछ ऐसा सिचुएशन जो रिकरिंग नहीं होता है. अचानक कुछ हुआ, तो सर इस केस में क्या करेगा ऑडिटर? इस केस में ऑडिटर बोलेगा मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा कुछ प्रोजेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये रिकरिंग तो है नहीं. ओके, फिर बाद में 8 है. ये 8 में मिसस्टेटमेंट क्यों हुए? 8 में साइन क्यों नहीं हुई परचेज मैनेजर की? देन यू आर आस्किंग, एंड परचेज मैनेजर सेइंग नहीं सर उस दिन है ना हम लोग छुट्टी पे थे. ओके, ऐसा सिनेरियो. देन यू विल आस्क वेदर ये छुट्टी पे रहना कॉमन फीचर है क्या? ये छुट्टी पे जाना क्या ये कॉमन है क्या? ये हमेशा ऐसे छुट्टी पे जाते हैं क्या? एंड देन टेक्निकली यू कम टू द कंक्लूजन, अरे ये कॉमन फीचर है. यानी जो मिसस्टेटमेंट में एरियाज है कौन से कॉमन है कौन से अनकॉमन है. तो आपने पता किया कॉमन है. तो मेरे को प्रोजेक्ट करते वक्त मेरे को बताओ, लॉजिकली लगाओ, कौन सा फीचर रिकरिंग होने की संभावना है जो छुट्टी पे जाना. तो आपने क्या किया? ओके, जब आपने 29 कैलकुलेट किया है, 29 वाज बेस्ड ऑन प्रोजेक्शंस. ओके, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट. कौन सा मिसस्टेटमेंट? प्रोजेक्टेड. अब मेरे को बताओ, कहना है से प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो 29 मैंने कैलकुलेट किया है. अच्छा, 29 कैलकुलेट कैसे किया ये समझ में आया? ओके, 29 कैलकुलेशन का मैंने क्या बताया, लॉजिक समझा? हमने सैंपल टेस्ट किया. सैंपल 100% करते वक्त प्रोजेक्शन नहीं होता है. प्रोजेक्शन कब होता है? जब हम क्या चेक करते हैं? सैंपल चेक किया. सैंपल में मुझे कुछ मिसस्टेटमेंट मिला, और वो मिसस्टेटमेंट मैंने किसके ऊपर प्रोजेक्ट किया? पॉपुलेशन पे. लेकिन वो प्रोजेक्ट करते वक्त मैंने 2 चीज ध्यान में रखी. एक था एनोमली, एक था कॉमन फीचर. एनोमली को मैं प्रोजेक्ट करते वक्त कंसिडर नहीं करता, और एक कॉमन फीचर है उसको हम कंसिडर करते हैं वाइल प्रोजेक्शन. ओके, आई होप ये समझ में आया. ये मैंने 530 का बैकग्राउंड भी बताया आपको साथ में. तो आई 530 सैम्पलिंग वाला कॉन्टेक्स्ट. ओके, तो नेवरदीलेस मेरे ख्याल से ये समझा क्या बड़ी. तो अब मेरे को बताओ, ये जो प्रोजेक्शन किया है, ओके सर प्रोजेक्शन किसने किया? ऑडिटर ने. अब क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन किया है 29 में मिसस्टेटमेंट है, क्या ये कंफर्म मिसस्टेटमेंट है या प्रोजेक्शन है? ओके, एक्चुअल मिसस्टेटमेंट कितने हैं? 10. एक्चुअल मिसस्टेटमेंट कितना है? 10. 29 इज प्रोजेक्शन. 29 इज प्रोजेक्शन. प्लीज डू अंडरस्टैंड, 29 इज प्रोजेक्शन. तो ये प्रोजेक्शन को हम कंसिडर करते हैं, लेकिन प्रोजेक्शन इज बेसिकली आवर अंदाजा. इट इज नॉट एन एक्चुअल मिसस्टेटमेंट. इसीलिए इसको वापस डिवाइड करते हैं. तो आप देखो, आप मिसस्टेटमेंट आप लो, पहले सारे मिसस्टेटमेंट लो, सारे मिसस्टेटमेंट एक जगह जमा करो. अच्छा, इधर टोकरी में रख दो मिसस्टेटमेंट, फिर एक मिसस्टेटमेंट निकालो. अच्छा, ये फैक्चुअल है. फैक्चुअल मतलब लिफो होना चाहिए था, तुमने क्या किया? फीफो. अरे तुम्हारी फैक्ट्री में लिफो हो रहा है, तुम साला रिकॉर्डिंग फीफो के हिसाब से कर रहे हो. अरे तुम यार डेप्रिसिएशन का जो मेथड है, अरे मालूम है 5 साल के बाद ये इसी खराब होने वाला है, एसएलएम करना चाहिए, तुम डब्ल्यूडीवी से कर रहे हो क्योंकि प्रॉफिट बनाना चाहते हो. ओके, ये दिख रहा है फैक्चुअल. सेकंड, दूसरा आइटम निकाला, ये कौन सा हुआ? प्रोजेक्टेड. तीसरा आइटम निकाला जजमेंटल. आई होप वो आपको समझा होगा जजमेंटल क्या मिसस्टेटमेंट है. जजमेंटल मिसस्टेटमेंट कल डिस्कस किया था. सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मैनेजमेंट कितना मार रहा है? 20%. और मैं कितना बोल रहा हूँ? 5%. ओके जी, अब मेरे को बताओ ये क्या है? कहीं पर एफआरएफ में लिखा है क्या? नहीं. ये कौन सा है? जजमेंटल. तो मेरे को बताओ, सबसे पहले मिसस्टेटमेंट ढूंढने के बाद क्या करना चाहिए आपने? 3 में डिवाइड करना चाहिए. कौन सी 3 चीजों में? फैक्चुअल, प्रोजेक्टेड, जजमेंटल. आई होप ये समझा. तो ये एक तरीका. इधर सर ये क्यों डिवाइड करना चाहिए? कोई डिवाइड करने का लॉजिक है? देखिए, आपको टोटल मिसस्टेटमेंट से ही गेम करना है. You need to perform the misstatement based on total, but this division will make you more understandable. misstatement को understanding बहुत अच्छे से देगा.
तो पहला टास्क ये समझ में, आई होप ये समझा बड़ी। सेकंड पॉइंट, मिसस्टेटमेंट को ओके क्या बोलता है 450, 450 बोलता है ये सारे मिसस्टेटमेंट को आपने एक्यूमुलेट करना चाहिए। सारे 450 क्या बोलता है, सारे मिसस्टेटमेंट को एक्यूमुलेट करना चाहिए। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्यूमुलेट बड़ी? एक्यूमुलेट मतलब टोटल करिए। अब क्वेश्चन है सारे मिसस्टेटमेंट को टोटल करना मतलब मिसस्टेटमेंट पता करना। सर वैसे मिसस्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई होंगे? तो मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज डू लिसन केयरफुली। मिसस्टेटमेंट असर्शन लेवल पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन। असर्शन लेवल, असर्शन लेवल मतलब इंडिविजुअल लेवल। असर्शन लेवल याद होगा आपको? असर्शन लेवल मतलब हर आइटम केस में। तो आप एक एग्जांपल लीजिए, इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में ओके मिसस्टेटमेंट है। सर क्यों मिसस्टेटमेंट है? फीफो फॉलो करना चाहिए था, लिफो किया। ओके यानी एक्चुअली हो क्या रहा है रियल लाइफ में? फीफो, लेकिन रिकॉर्ड में क्या आ रहा है? लिफो। आप ये गलत कर रहे हो, रिकॉर्ड में गलत कर रहे हो और एक्चुअली अलग हो रहा है। ये मिसस्टेटमेंट है, फैक्चुअल प्रोजेक्टेड। ये अपने डिस्कशन है, ये पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए। ये हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए आपके सिलेबस में, बट आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर वेरी क्लियर विद दिस 3 पॉइंट्स। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे क्या बढ़ रहा हूं? असर्शन के लेवल पे मिसस्टेटमेंट ढूंढिए। अब कैसे ढूंढते अपन मिसस्टेटमेंट? सपोज इन्वेंट्री में आपको मिसस्टेटमेंट मिला, इन्वेंट्री में मिसस्टेटमेंट मिला, तो आप ध्यान रखना ये 320 में लिंक्ड है। 320 बोलता है आप मटेरियलिटी कैन बी सेट एट असर्शन लेवल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। इट कैन बी सेट एट बोथ लेवल। कंपलसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे सेट करनी है। कंपलसरी किस पे सेट करनी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। सर ये होता क्या है? ये वही मैं अभी समझाते बैठ रहा हूं। तो 320 और ये मिक्स होना पड़ेगा, तब जाके ये समझ में आएगा। तो मेक इट श्योर ये आप अंडरस्टैंडिंग बरोबर रखिए, लॉजिक बरोबर लगाइए। व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट इन्वेंट्री, ओके ऑडिटर बोलता है इन्वेंट्री के लिए मटेरियलिटी है, इन्वेंट्री के लिए मटेरियलिटी है 1 लाख रुपया। कितना बेटा? 1 लाख। और इसको मिसस्टेटमेंट मिला ओके वो 80,000 का है। ओके अब मेरे को बताओ, अगर मिसस्टेटमेंट 80,000 का है, मटेरियलिटी 1 लाख है। 1 लाख मतलब क्या है मटेरियलिटी? मटेरियलिटी मींस ओके ऑडिटर इसके ऊपर गया तो वाट लग जाएगी, इसके नीचे है तो ऑडिटर बोलता है चोमू है। ओके तो अब मेरे को बताइए यहां पर 80,000 का मिसस्टेटमेंट मिला है और मटेरियलिटी कितने की है? 1 लाख की है। अब मेरे को बताइए क्या ये मेरे लिए मटेरियल है? क्या मिसस्टेटमेंट होगा पर मटेरियल नहीं है, तो यहां पर अपन इसको छोड़ सकते हैं। सर ये किसने बोला? ये 450 नहीं बोला, ये किसने बोला? 320। ये 320 का डिस्कशन चल रहा है। मैं 320 से 450 में आ पाऊंगा, नहीं तो मैं आ नहीं पाऊंगा। ओके क्योंकि आपको जब एक्यूमुलेट करना है तो मिसस्टेटमेंट तो होना चाहिए। तो इसको आप आगे लेके ही नहीं जा रहे हो, 450 तक लेके नहीं जा रहे हो। इसको कौन रोक दे रहा है? 320। दूसरा और एक तरीका क्या है सर? सर और एक तरीका ऐसा है कि इन्वेंट्री है और आपने इसमें मटेरियलिटी सेट ही नहीं की है। आपने इसमें मटेरियलिटी सेट ही नहीं की है। आपने बोला जितना भी आया मेरे लिए मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल है। तो अब इसमें अगर 80,000 आता है दूसरे केस में, अब मेरे को बताओ क्या इसको कंसीडर करेंगे या इग्नोर करेंगे? कंसीडर। सर क्यों? असर्शन लेवल पे मटेरियलिटी सेट नहीं की है। तो मेरा पहला पॉइंट, मटेरियलिटी सेट 2 लेवल पे होती है। कौन सी लेवल? असर्शन लेवल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। असर्शन लेवल मतलब 300 के आइटम एक सेट करते जाइए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल यानी सबका टोटल, वो टोटल मेरे को काम आएगा अभी, बट उसको पहले अपन इग्नोर। ये वाला पहला पॉइंट समझा? तो 450 तक मिसस्टेटमेंट को लाने के लिए आपको ओके 320 को यूज करना पड़ेगा। तो 320 अगर आपने असर्शन लेवल पे सेट की होगी तो फिर उधर मटेरियलिटी देखिए, अगर उधर मटेरियल होगा तो इधर लेके आइए, अगर उधर मटेरियल नहीं है तो आपको 450 में लाने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आया बड़ी? ओके यानी मेरे को बताइए ओके अगर यहां पर आपने असर्शन लेवल पे मटेरियलिटी सेट की है, 2 सिचुएशन आपको मैंने दी है, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आपने मटेरियलिटी सेट की है कौन से लेवल पे? असर्शन लेवल पे, तो उस टाइम पे पहले मटेरियलिटी देखिए। अगर उधर मटेरियलिटी है तो किधर जाइए? 450 में। अगर उधर सेकंड सिचुएशन देखिए, मैंने मटेरियलिटी सेट की हुई है, मटेरियलिटी सेट की सॉरी सेकंड सिचुएशन में मटेरियलिटी सेट नहीं की है, तो भाई डायरेक्टली 450 में लेके आइए। 1 रुपया भी रहा तो भी 450 में। लेकिन फर्स्ट लेवल पे कितने के ऊपर चाहिए? 1 लाख। 1 लाख 2,000 हुआ तो लेके आइए, अगर 1 लाख के नीचे है तो इग्नोर। सर भूल जाने का इसको, अरे मिसस्टेटमेंट ना, अरे यार फिर चिंदी काम करेगा तो 1-1 रुपये भी दिखेगा। लेकिन पर इसको कैसे यूज करेंगे हम समझेंगे। व्हेन आई एम गिविंग एन एग्जांपल 100% अगर मैं इस पॉइंट पे कर रहा हूं तो ये मैं एजेंडा चाहता हूं कि आपके दिमाग में वो स्ट्रक्चर बैठे। ओके तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए ओके ये मैंने आपको सेट कर दिया। तो मेरा पहला पॉइंट है, मेरे को बताओ 450 में आने के लिए पहले मिसस्टेटमेंट आने चाहिए ना। मिसस्टेटमेंट आपको पहले मिल जाएंगे 330 फॉलो करके, 330 के साथ में आपने 320 भी करना है। ठीक है तो मेरे को बताओ कौन से मिसस्टेटमेंट लेके आओगे इधर? मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और ऐसा भी हो सकता है मटेरियलिटी सेट ना हो, तो फिर सारे के सारे मिसस्टेटमेंट लेके आओगे। 2 तरीके समझे? तो अब 450 क्या बोलता है? 450 बोलता है पहला स्टेप कर एक्यूमुलेट कर। क्या कर? एक्यूमुलेट। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्यूमुलेट करना? एक्यूमुलेट करना मतलब सारे जो मिसस्टेटमेंट मिले उसको टोटल करो। सारे मिसस्टेटमेंट को क्या करो? टोटल करो। पहला स्टेप समझ में आ रहा है? तो मेरा क्वेश्चन है एक्यूमुलेट कौन सा करेगा? अब एग्जांपल अगर इधर आया है ये वाला एक्यूमुलेशन में जाएगा क्या?
स्क्रीन में देखिए, ये वाला एक्यूमुलेशन में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मटेरियल नहीं है। तो क्यों मटेरियल नहीं है? क्योंकि आपने असर्शन लेवल पे मटेरियलिटी सेट की है, तो इसको एक्यूमुलेशन में डालना ही नहीं है। ओके, और दूसरा सिनेरियो, क्या ये एक्यूमुलेशन में जाएगा? यस। अच्छा, और एक पहले वाली सिचुएशन में ऐसा बोल रहा हूं 1 लाख मटेरियलिटी है और इधर 3 लाख आया है, क्या ये एक्यूमुलेशन में जाता था? यस। समझ में आया क्या? तो एक्यूमुलेशन में जब लेके जाओगे सारा एक्यूमुलेट, जो भी मिसस्टेटमेंट आपको मिला होगा असर्शन लेवल पे, सारा का सारा लेके आइए, उसको टोटल बनाइए। क्या टोटल बना आपसे? यस। ओके, एग्जांपल, आपको कितने आइटम में मिसस्टेटमेंट मिले? 10। कितने आइटम में मिसस्टेटमेंट मिले? 10। 10 में आइए, 10 का जो भी टोटल मिसस्टेटमेंट अमाउंट है वो कैलकुलेट करिए, वो लेके आइए। दैट इज योर स्टेप 1। स्टेप 1 क्लियर बडी? स्टेप 1 में कोई दिक्कत? तो स्टेप 1 क्या बोलता है? 2 चीज बोलता है। सबसे पहले ओके, मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफाई करके उसको डिवाइड करिए, डिवाइड करिए 3 पार्ट में, फैक्चुअल, जजमेंटल, प्रोजेक्टेड। वंस डिवीजन इज डन, मेक श्योर यू आर डूइंग एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल मिसस्टेटमेंट। ओके, बट ये मिसस्टेटमेंट का नाम क्या है? आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट। कौन सा मिसस्टेटमेंट बोला? आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट? जो मिले हैं, जो मिले हैं। मेरे शब्दों का प्रयोग का ध्यान रखना, मेक इट श्योर यू आर वेरी कैची ऑन दिस वर्ड्स। आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट यानी मैं यहां पर कौन सा एक्यूमुलेशन कर रहा हूं? आई एम एक्यूमुलेटिंग विच मिसस्टेटमेंट बड़ी? आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट। ये पहला टेक्स्ट याद रखना। ओके सर, लेट्स गो अहेड। ओके, अच्छा, पहला पॉइंट समझ में आया। तो एक्यूमुलेट करके 2 चीज करनी है, आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट के साथ 2 चीज करनी है। क्या 2 चीज करनी है? डिवाइड करना है और एक्यूमुलेट करना है। पर डिवाइड क्या? उसको अमाउंट को डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड बेस्ड ऑन कैटेगरी। बेस्ड ऑन कैटेगरी। कौन सी बेस्ड ऑन कैटेगरी है? फैक्चुअल, प्रोजेक्टेड एंड जजमेंटल। दिमाग में रहेगा। सेकंड पॉइंट, उसको और क्या साथ में करना है? एक्यूमुलेशन। तो ये है तुम्हारा पहला स्टेप। पहले स्टेप में क्लोज करते हैं। ओके, सेकंड स्टेप बोलता है, ऑडिटर बोलता है, देख क्या तेरी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ रही है क्या? और ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। ओके, आई होप आपको याद होगी स्ट्रैटेजी वर्ड। ओके, 2-3 दिन पहले अपन ने पढ़ा था। स्ट्रैटेजी में अपन क्या करते हैं? रिसोर्स लगाने की कोशिश करते हैं, इफ यू रिमेंबर रिसोर्स का कॉन्टेक्स्ट। तो राइट नाउ ओके, ये बोलते हैं सेकंड स्टेप में, प्लीज ऑडिटर चेक इट आउट वेदर यू नीड टू मॉडिफाई ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। नाउ द क्वेश्चन कम्स, सर हाउ आई विल कम टू नो वेदर आई नीड टू मॉडिफाई ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी? What is the logic behind modifying overall audit strategy? What is the logic behind it? Logic is, अच्छा मेरे को बताइए, what should be the intention when you start the audit of my company? Suppose I am your company, I am your client. When you start the audit of mine, okay, what is your intention? Starting से objective क्या होगा? अमित आदित्य चोमू है, चोर है या अच्छा आदमी है? अच्छा आदमी है। डे 1 से आपका ये होगा, देयर इज मिसस्टेटमेंट नहीं होंगे। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होंगे? फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो तुम्हारी स्ट्रेटजी कैसी होगी? ओपिनियन कौन सा देना है? अनमॉडिफाइड या मॉडिफाइड? अनमॉडिफाइड। यहां पर सेकंड स्ट्रेटजी में अपन बोलते हैं, क्या अपने को ऐसी परिस्थिति आ रही है कि हमको मॉडिफाइड ओपिनियन की तरफ जाना पड़ सकता है? तो सर यही कौन सी सिचुएशन आएगी? तो इसमें ये लोग बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलता है, मैं ए और बी 2 ऑप्शन देता हूं, ए और बी। ओके, ए और बी में से अगर दोनों में से कुछ भी एक आइटम हो रहा होगा ना, मॉडिफाई। मॉडिफाई स्ट्रैटेजी, मॉडिफाई, मॉडिफाई, गो विथ मतलब तुम्हारी लगी पड़ी है भाई, फिर 450 में आगे बढ़ो। अगर ए और बी में से एक भी सिचुएशन नहीं होती है, स्टैंडर्ड 450 ओवर। तो सर ए और बी क्या बोलता है? ए बोलता है आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट एक्सीड मटेरियलिटी। आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट एक्सीड मटेरियलिटी। नाउ दिस आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट कौन सा वाला आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट है जो फर्स्ट में आया? फर्स्ट में आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट को क्या कहता है अपने? एक्यूमुलेट। और इधर ये मटेरियलिटी कौन सी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, जो आपने टोटल मटेरियलिटी है। याद रखना, आप 320 अगर वापस बाई चांस गलती से देख लो इंटर का, तो आपको समझ में आएगा। ओके, आपको कंपलसरी कौन से लेवल की मटेरियलिटी सेट करनी पड़ेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की। ओके, कौन से लेवल की मटेरियलिटी सेट करनी पड़ेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की। असर्शन लेवल की कंपलसरी है क्या? नहीं। किसकी चॉइस है? ऑडिटर। तो एग्जांपल, अब मेरे को बताओ, इसमें अगर इसने नहीं सेट किया तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इसमें सेट किया, दिक्कत है क्या? नहीं। सेट करो नहीं करो, किसका चॉइस? ऑडिटर। इधर सेकंड पॉइंट में ये मटेरियलिटी मेरे को चाहिए ही चाहिए। ये कौन से लेवल की है? फाइनेंशियल ट्रीटमेंट लेवल। फाइनेंशियल ट्रीटमेंट लेवल सर मटेरियलिटी कैसे निकालेंगे? आपने इंटर में पढ़ा हुआ है, लॉजिकली आपने देखा होगा। इट कैन बी ए नेटवर्थ का परसेंटेज, इट कैन बी एसेट्स का परसेंटेज, इट कैन बी जो तुम्हारा टोटल शेयर होल्डिंग का जो भी आपका शेयर्स होंगे, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, उनका टोटल का परसेंटेज। सर हु विल डिसाइड? ऑडिटर का जजमेंट है भाई। तुम चेक करो, तुम देखो मटेरियलिटी क्या सेट करनी है। फाइनेंशियल ट्रीटमेंट लेवल की परसेंटेज सेट की जाती है। असर्शन लेवल के लिए अपने अपने क्राइटेरिया है, वो छोड़ दीजिए। असर्शन लेवल के लिए मैं, बिकॉज आई एम नॉट इन 320, बट वो 320 का जिक्र है, उस लॉजिक से आपको समझा रहा हूं। तो ये आई होप ये समझा बड़ी। आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट एक्सीड्स मटेरियलिटी। और दूसरा वाला सिनेरियो क्या बोलता है? दूसरा वाला सिनेरियो समझने की कोशिश करो, ये लॉजिक ध्यान रखना। ओके, ये नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट ऐसा है, ये एक्सीड नहीं हो रहा है। सेकंड सिचुएशन क्या बोल रहा है? ये एक्सीड नहीं हो रहा है, ये एक्सीड नहीं हो रहा है मटेरियलिटी से।
लेकिन इस आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट का नेचर ऐसा है, इस आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट का नेचर ऐसा है, नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट ऐसा है कि हम थोड़ा और मेहनत करें तो ये एक्सीड हो जाएगा, हम थोड़ा और मेहनत करें एक्सीड हो जाएगा। सर एग्जांपल बताइए। एग्जांपल ऐसा है, एज्यूम करिए एक्यूमुलेट होने के बाद आपके पास आया मटेरियलिटी 10 करोड़। एक्यूमुलेट होने के बाद ये कौन सा मिसस्टेटमेंट है? आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट कितना है? 10 करोड़, और आपने मटेरियलिटी सेट की थी 8 करोड़। तो अब मेरा पहला पॉइंट, क्या 10 करोड़ इज ग्रेटर देन 8 करोड़? स्ट्रैटेजी मॉडिफाई करिए। ओके, अब दूसरा आता है, और एक एग्जांपल लेते हैं, 7.6 करोड़। अब मेरा क्वेश्चन है, इज 7.6 करोड़ ग्रेटर देन 8 करोड़? नो, ये तो ग्रेटर देन नहीं है। लेकिन ये जो 7.6 करोड़ जो मिसस्टेटमेंट मिले ना, इन मिसस्टेटमेंट के नेचर ऐसे है कि अगर अपन थोड़ा और एफर्ट करें तो ये 7.6 करोड़ का 8 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। ओके, टेक्निकली वापस मैं बोल रहा हूं, नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट में निर्भर है, नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट पे निर्भर है ये। आप ऐसा मत बोलो सर ये तो नजदीक में आ रहा है, अरे ऐसा नजदीक में आएगा तो टेक्निकली हर चीज लेते जाओगे, क्योंकि कोई ना कोई नजदीक में कभी ना कभी होगा ही। ये नजदीक नहीं है, इमोशन मत डालिए इधर, इधर आपको नेचर देखना है। सर नेचर का एग्जांपल समझाइए। एग्जांपल बताता हूं। ओके, हमने ये इन्वेंट्री में जो 80,000 मिसस्टेटमेंट मिला है, इसको कंसिडर किया था कि इग्नोर किया था? ये वाला आइटम कंसिडर किया था, इग्नोर किया था? इग्नोर किया। क्यों इग्नोर किया था? क्योंकि इंडिविजुअल असर्शन लेवल पे अपने क्या सेट की, क्या सेट की थी? मटेरियलिटी। लेकिन आप समझने को छोड़ो, हमको इन्वेंट्री में मटेरियलिटी नहीं मिली, लेकिन जो मिसस्टेटमेंट और एक्यूमुलेट होके मिल रहे हैं वो डेटस के रिलेटेड है, वो क्रेडिट सेल्स के रिलेटेड है। आप समझने को छोड़ो, लॉजिक लगाओ। अगर क्रेडिट सेल्स के रिलेटेड है, डेटस के रिलेटेड है, परचेस के रिलेटेड आ रहा है, इसका मतलब ये सब लिंक इन्वेंट्री पे भी तो जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा मेरे को बताओ, सेल्स एंड परचेस में अगर मिसस्टेटमेंट होने की संभावना है या मिसस्टेटमेंट है, क्या डज इट इफेक्ट इन्वेंट्री ऑल्सो? नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट है, ये मिसस्टेटमेंट का नेचर ऐसा है कि ये किसी और को भी इफेक्ट कर रहा है, असर्शन को आपको देखना पड़ेगा। तो शायद व्हाट विल हैपन मालूम है क्या? इधर आप क्या करो, ये जो मटेरियलिटी आपने सेट की है इसको इग्नोर करो, और शायद अब क्या कंसिडर करोगे, 80,000 को किधर लेके आओगे? एक्युमुलेशन में। कुछ समझ में आ रहा है? नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट ऐसा है। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है, अगर आपको मालूम पड़ा है जो आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट के नेचर ऐसे है या उसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे है, मैं क्या बोल रहा हूं वापस सुनने की शुरू हो, नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट और उसके जो सर्कमस्टेंसेस है, ओके ये ऐसे है कि ये किससे एक्सीड करेंगे? मटेरियलिटी। वो आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट मटेरियलिटी से एक्सीड नहीं कर रहा है, लेकिन नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट और उसके सर्कमस्टेंस ऐसे है कि वो एक्सीड कर सकते हैं। समझ में कुछ आया बड़ी? आई होप समझा गया बड़ी, एवरीबडी? अच्छा अब ये अच्छा, इसमें और एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, और एक एग्जांपल का पॉइंट बता देता हूं। लॉजिक देखिए, व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट मिसस्टेटमेंट, ये 7.6 करोड़ आया। अब इमेजिन करो ये 7.6 करोड़ इज बेसिकली ये मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड किया, लेकिन ये सारा आइडेंटिफाइड किया था और ये एक्चुअली मालूम है ये जजमेंटल है। कौन सा है? जजमेंटल, यानी इसमें फैक्चुअल और प्रोजेक्शन कम है। ओके, ये जजमेंटल मेजरली है। ओके, अब मेरे को बताओ जजमेंटल है, जजमेंटल तो जजमेंटल है, क्या जजमेंटल में वेरिएंस आने की संभावना है? ओके, तो भाई नेचर ऐसा है, जजमेंटल है, आई मे मॉडिफाई दिस वन। ओके, और शायद और एक वर्ड आपने शायद इंटर में पढ़ा हो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। व्हाट इज द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी? देयर इज टू डिफरेंट थिंग्स, वन इज रिवीजन इन मटेरियलिटी एंड वन इज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। ओके, यानी देखो कुछ चीजें हैं जो ये फाइनल में आपके सिलेबस में नहीं रहती, लेकिन उसका लिंक इंटर के से बिना उसके कुछ कर ही नहीं सकते। तो सर मैं जब बोलूं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी और रिवीजन इन मटेरियलिटी, दोनों में याद रखना, जब मैंने पहली बार मटेरियलिटी सेट की होगी, पहली बार मैंने मटेरियलिटी मतलब एक अमाउंट सेट किया होगा, मैंने अमाउंट सेट किया होगा, मटेरियलिटी जब सेट की होगी, ओके, तो मैंने है ना पिछले साल के फिगर्स को बेस बना लिया। एग्जांपल, नेटवर्थ पिछले साल का लिया, इस साल का तो अरे जब मैं जून में आया तो इस साल का तो फिगर था ही नहीं मेरे पास। इस साल का फिगर कब बनेगा? 31 मार्च 25। ओके, 19 जून 24 में फिगर कौन सा होगा मेरे पास? पिछले साल के। तो पिछले साल के बेस पे मैंने कुछ अमाउंट लिया, परसेंटेज लिया। अब मेरे को बताओ पिछले साल के फिगर है, करंट ईयर में आते आते क्या फिगर सेम रहेंगे या चेंजेस आएंगे? चेंजेस आएंगे। अच्छा, क्या आपको मालूम है टैक्स ऑडिट तो अपने को आइडिया होगा। अच्छा, क्या एडवांस टैक्स मालूम है आपको? एडवांस टैक्स कैसे भरते हैं अपन, क्या बेसिस पे भरते हैं? थोड़ा सा आप मेरे को सपोर्ट भाई, सपोर्ट करना, मेरे गले की ठुकी हुई है, मतलब कल तो शाम को तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, तो भाई धीरे, इसलिए मेरा थोड़ा सा वो मैनेज करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा असिस्टेंस दीजिए बड़ी। मेरे को बताइए कैसे कैलकुलेट कर, कैसे करते हैं एडवांस टैक्स, कैसे करते हैं? पूरे साल का प्रोजेक्ट करते हैं, तो ऐसा ही मैनेजमेंट ने प्रोजेक्ट किया होगा पूरे साल का, उसी को हमने बेस बना लिया मटेरियलिटी के लिए। ओके, लेकिन क्या मार्च में वापस आप एडवांस टैक्स में रिवीजन करते हो? क्यों? एक्चुअल से कंपेयर करते हो। तो जब भी अपन एक्चुअल से कंपेयर करते हैं बड़ी, ओके आई होप तोड़ मालिक, ओके आई होप समझ में आया। तो रिवीजन कब होता है? रिवीजन कब होता है? अगर आपका मटेरियलिटी सेट ऑन
budgets or previous year, an actual figure differ from that figure, then what is required? Revision. बट सर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होती है? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहां पर एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड, दो शब्द है, एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट एक्सीड्स मटेरियलिटी. वापस आते हैं, अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट. याद रखो भाई मेरे पास थोड़ा सा पॉइंट. ओके, एग्रीगेट ऑफ uncorrected and undetected misstatement exceeds materiality. सर ये अभी अनडिटेक्टेड अनकरेक्टेड क्या हुआ? कल मैंने आपको समझाया था कि भाई साहब ये सब वर्डिंग्स ध्यान रखनी पड़ेगी. अनकरेक्टेड क्या है? सर इधर क्या था? अनकरेक्टेड अभी तक आया नहीं है, लेकिन जो आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट है मतलब अभी तक करेक्ट नहीं किया है मैनेजमेंट ने. तो अगर मैनेजमेंट इसको करेक्ट नहीं करता है, ये करेक्ट नहीं हुआ है, ये प्लस कोई अनडिटेक्टेड होगा. सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनडिटेक्टेड? यहां पर मैंने कौन से मिसस्टेटमेंट लिए? मेरे को ये बताओ, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी के लिए कौन से मिसस्टेटमेंट लिए मैंने? आइडेंटिफाइड इज डिफर फ्रॉम अनडिटेक्टेड. आइडेंटिफाइड इज डिफर फ्रॉम अनडिटेक्टेड. व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनडिटेक्टेड? मेरे को जिसके लिए एविडेंस ही नहीं मिला. एग्जांपल सर, एग्जांपल इसमें अनडिटेक्टेड किधर है सर? आपने एग्जांपल में नहीं लिया, नहीं लिया, एग्जांपल बोल रहा हूं. ओके, एक 5 करोड़ की इन्वेंट्री थी सर, किधर है वो? ओके भाई साहब यूक्रेन में. अभी किधर है? यूक्रेन. अब मेरे को बताओ, क्या इन्वेंट्री के लिए फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा? अच्छा, जाओगे यूक्रेन, आके जाओगे, अगले जन्म में आओगे. तो भाई आपको क्या करना है? 501 बोलता है अगर आप नहीं जा पा रहे हो, यानी इम्प्रैक्टिकेबल है, यानी थ्रेट टू लाइफ ऑफ ऑडिटर है, इस केस में ऑडिटर ओके अल्टरनेट प्रोसीजर करेगा. अल्टरनेट प्रोसीजर नहीं कर पाया और उसको कुछ नहीं मिला, ऑडिटर क्या करेगा? अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. और यानी यार 5 करोड़ पे क्या एविडेंस मिला या नहीं मिला? नहीं मिला. तो मेरे को बताओ, क्या ये मिसस्टेटमेंट है या नहीं है? क्या ये मिसस्टेटमेंट है या नहीं है? अनडिटेक्टेड है, आपको मालूम ही नहीं है इसके लिए. ओके, तो ये अनडिटेक्टेड टोटल करो प्लस अनकरेक्टेड, ये अनकरेक्टेड माना जाएगा, इसको टोटल करो. ये दोनों का टोटल क्या मटेरियलिटी से आगे बढ़ रहा है? अच्छा, ये कितना हुआ? 7.5 करोड़, और ये कितना हुआ? 5 करोड़. ओके, क्या ये मटेरियलिटी से बढ़ रहा है? ओके, इसका मतलब ऑडिटर अपनी मटेरियलिटी कम कर देगा. दैट इज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी. परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मतलब ऑडिटर क्या करता है? मटेरियलिटी को कम करता है. लेकिन कम कब करता है? जब दो चीज का टोटल उससे ज्यादा होता है. अच्छा, अभी किसका टोटल ज्यादा है मेरे को बताओ? ओके, क्या ये टोटल ज्यादा है क्या? अच्छा, मेरे को बताओ, पहले से सेंटेंस में कौन सा मटेरियलिटी था? ये मटेरियलिटी कौन सा चल रही है अभी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल. और ये क्या है? आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट. ये तो एक्सीड कर रही है. दिमाग फोड़ी थी नहीं, अपन डायरेक्टली मार्क्स मैनेजमेंट को जाके बोलेंगे मैनेजमेंट चोमो बना चल रहा है. लेकिन दूसरे केस में क्या हो रहा है मेरे को बताओ? दूसरे केस में 7.5 करोड़ आया, क्या ये एक्सीड कर रही है? नहीं. तो मैंने एक एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे दिया. क्या तरीका हो सकता है? यहां पर इसको कंसीडर कर लो, क्योंकि नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट ऐसा है. दूसरा सर्कमस्टेंस समझा रहा हूं मैं आपको, जजमेंटल सर्कमस्टेंसेस है. तो ओके, सर्कमस्टेंस. तीसरा ओके, आपका अनडिटेक्टेड एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट एग्रीगेट होकर मटेरियलिटी से एक्सीड हो रहा है. 450 नहीं बोल रहा है लेने के लिए, लेकिन 320 बोलता है कि जब आप 450 कर रहे होंगे या जब कुछ कर रहे होंगे और आपका एग्रीगेट ऑफ अनडिटेक्टेड प्लस अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट एक्सीड हो रहा होगा, किससे? मटेरियलिटी से. तेरी इच्छा होगी तो उसको कम कर सकता है. याद रखना, कम करके 1 रुपए में नहीं लाएगा, लेकिन ये जजमेंटल पॉइंट है. ये पूरा इसके लिए कोई मैथ्स नहीं है, ये आपको जजमेंट देखना पड़ेगा. ये सर्कमस्टेंस पे निर्भर है, कितनी सारी ऐसी चीजें हो रही है. तो तू क्या करता है मालूम क्या? इन दोनों का टोटल है और इसके लिए ये मटेरियलिटी नीचे करता है. ये 8 करोड़ को कितना बना देता है? 7 करोड़. सर ये 7 करोड़ क्यों बनाया? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी. So there are two different things of materiality. One is revision in materiality and one is performance materiality. Okay, when revision is required? When revision is required, when actuals and budgets are differing. Okay, and when performance is required, when aggregate of uncorrected and undetected misstatements exceeds materiality, but performance materiality में auditor को अपना judgment लगाना है. Okay, रिविजन में जजमेंट नहीं होता है, फिगर्स चेंज हो रहे हैं ना. एक्चुअली आपने पहली बार मटेरियलिटी दी थी, नेटवर्थ था 100 करोड़. ओके, जब एक्चुअली अभी देख रहे हो तो नेटवर्थ है 120 करोड़. क्या मटेरियल में चेंजेस आएगा? तो ये कौन सा हुआ? रिवीजन. रिवीजन में जजमेंट नहीं है, रिवीजन में फिगर चेंज हो रहा है. जिसको मल्टीप्लाई किया था उसका फिगर चेंज हो रहा है. दैट इज कॉल्ड रिवीजन. हाँ, समझा क्या बड़ी एवरीबडी? ओके, और परफॉर्मेंस में क्या होता है? अपना दिमाग लगाना पड़ता है. तो आपके मैंने इसके 3 एक एग्जांपल समझा दिए कि ये वाला एग्जांपल कैसा कैसा है. 3 एग्जांपल मैं वापस समझा दे रहा हूँ कौन से है. ये एग्जांपल जितना अच्छे से समझोगे उतना स्टैंडर्ड अच्छे से जाएगा, अच्छे से स्टैंडर्ड जाएगा. क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्रैक कर पाओगे. 3 एग्जांपल क्या क्या? पहला एग्जांपल एकदम सिंपल बताया मैंने पहला बताया, इसका नेचर ऐसा है कि ये इसके साथ लिंक होगा, क्योंकि ये परचेज में झोल है, सेल्स में झोल है. तो मेरे को बता, परचेज और सेल्स में झोल है तो इन्वेंट्री में होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि परचेज और सेल्स तो लिंक इन्वेंट्री से. बात खत्म, इसको चेंज करिए. भारत माता की है. जिपिंग बड़ी. सेकंड सिनेरियो. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये जजमेंटल है. अब मेरे को बता, जजमेंटल है, जजमेंट तो चेंज कभी भी हो सकता है.
तो जजमेंट को इंक्रीज करिए, चेंज करिए, और जजमेंट के ऊपर देखिए और वेरिएशन निकालिए। और तीसरा सिनेरियो, ओके, ये मत चेंज करिए, ये मत चेंज करिए। क्या चेंज करिए? या 8 करोड़ को चेंज करिए, 8 करोड़ को कम कर दीजिए। कैसे करोगे 8 करोड़ कम? बाय यूजिंग परफॉर्मेंस मल्टीप्लिसिटी, यानी 8 करोड़ का कितना हो जाएगा? 7 करोड़। लेकिन मन किया इसलिए 7 करोड़ कर रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो अगर इसको 7 करोड़ करेगा, ओके, बाद में तेरे को 6 करोड़ मिलेगा, फिर तू इसको 6 करोड़ करेगा, फिर बाद में तू इसको 5 करोड़ मिलेगा, फिर तू वापस 4 करोड़ करेगा, ऐसा करके 1 रुपये पे लेके आएगा। आप समझने की कोशिश करो, ये सारा चीज कैसा है? जजमेंट है। ऑडिटर मन कर रहा है, चलो चलो कम करते जाए, फिर तो 1-1 रुपया दिख रहा है, 1-1 रुपया डजंट मैटर है। शेयर होल्डर बोलेगा चो में, मतलब क्या मजाक कर रहा है? अबे ऑडिटर यार, मटेरियल चीजों पे बात कर यार, 1-1 रुपये का क्या बता रहा है तू यार? तो ओके, 10,000 का, अबे यार 5,000 करोड़ की बैलेंस शीट है, ओके, 10,000 का मिसस्टेटमेंट आ रहा है। मैं वो बोल रहा हूँ मिसस्टेटमेंट आ रहा है ड्यू टू एरर। अगर ये फ्रॉड है तो इवन 1 रुपया भी मटेरियल है मेरे लिए। बात खत्म। दैट्स इट, फेयर इनफ। ओके, आई होप ये समझ में आया बड़ी। तो सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड स्टेज बताओ, सेकंड स्टेज क्या है अपना? पहला, ओके, क्या करने का? मिसस्टेटमेंट को क्या करने का? एक्यूमुलेट करने का। ओके, सेकंड क्या देखने का? स्टडी में चेंज आ रहा है क्या? स्टडी में चेंज क्यों कारण, कितने कारण से आ सकता है? 2। ये दोनों एंड है या और है? और। पहला क्या और है? आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट एक्सीड्स मटेरियलिटी। दूसरा, नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट या सर्कमस्टेंस ऑफ मिसस्टेटमेंट ऐसे है कि ये मटेरियलिटी से क्या कर सकते हैं? एक्सीड कर सकते हैं। एक्सीड कर नहीं रहे, एक्सीड कर सकते हैं। बढ़िया। ओके, आई होप शेपिंग बड़ी खत्म करे क्या? बड़े आगे। ओके, पंडर लोग, ऑनलाइन पंडर लोग समझ में आएगा बड़ी? आरुषि, दिव्या, कोमल, ओके, सारे पंडर लोग पक्का इधर तक क्लियर? ठीक है, तोड़ बड़ी। ओके, सुमित भाई परफेक्ट। ओके, तो ये लॉजिक बैठ गया सबका। अब थर्ड, ये सब देखे आके अभी अपने हाथ में आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट है, क्या ये मटेरियलिटीज एक्सीड कर रहे हैं? तो तुमको डरा रहा नहीं है कि भाई यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है, किसके पास जाइए? सीएमसी। सीएमसी का फुल फॉर्म कम्युनिकेट मैनेजमेंट टू करेक्ट मैनेजमेंट। ओके, ये करेक्ट करिए। ये देखिए, ये मिसस्टेटमेंट है, ये 10 की लिस्ट है, इसको रेक्टिफाई करिए। ओके, अब मेरे को बताओ, मैनेजमेंट 2 चीज करेगा। क्या करेगा मैनेजमेंट? 2 चीज, या तो करेक्ट करेगा या तो नहीं करेगा। नहीं करेगा, रीअसेस बाद में होएगा। ओके, करेक्ट करेगा या तो नहीं करेगा, ये 2 चीज होगी। करेक्ट करेगा, ओके, मैं देखो मैनेजमेंट भी तो शाना ही है ना, मैनेजमेंट भी शाना ही है। ओके, वो क्या चीज करेक्ट करने की कोशिश करेगा? मेरे को बताओ, फैक्चुअल, जजमेंटल या प्रोजेक्टेड? वो क्या करेक्ट करने की कोशिश करेगा? फैक्चुअल, क्योंकि बाकी सब में तो वो अपना डिबेट रख सकता है ना, फैक्चुअल में वो डिबेट नहीं रख सकता। ओके, तो मैनेजमेंट है। तो आप टेक्निकली सोचो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा ऐसा हो गई, लेकिन ऐसा है कि मैनेजमेंट को बोलिए, मैनेजमेंट करेक्ट भी करेगा, नहीं भी करेगा। करेक्ट किया मैनेजमेंट ने तो चेक करिए कि ये करेक्ट वाला रेक्टिफाई हो चुका है। तो आपका काम समझ में आ रहा है? ओके, जो मैनेजमेंट ने करेक्ट कर लिया उसको क्या करने का? जाके चेक करने का कि वो रेक्टिफाई हो चुका है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसके इफेक्ट बरोबर आ रहे कि नहीं। और जो करेक्ट नहीं किए इसको क्या करने का? रीजन पूछने का। क्या मैनेजमेंट, क्या कारण है? कारण, रीजन लेके नोट रखने का। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नाउ फोर्थ पॉइंट इट सेज, अब मेरे को बताओ कुछ करेक्ट किए होंगे। अच्छा, टोटल अपन इस आइटम को लेते हैं, फर्स्ट वाले आइटम को लेते हैं, फर्स्ट वाले आइटम को लेंगे। तो मेरे को बताओ मिसस्टेटमेंट कितने के? आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट कितने के? 10 करोड़। मटेरियलिटी कितने की है? 8 करोड़। अब आपने मैनेजमेंट को ये दोनों फिगर लेके आगे बढ़ गए। ओके, मैनेजमेंट ने क्या किया मालूम है क्या? 4 करोड़ रेक्टिफाई कर लिया, 4 करोड़ रेक्टिफाई कर लिया। ओके, जो फैक्चुअल का था नियर अबाउट वो कर लिया। तो अब मेरे को बताओ मिसस्टेटमेंट कितने का बचा? 6 करोड़। अब नाम चेंज करेंगे और चौथे पॉइंट से अब जो नाम डालोगे ये आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट नहीं होगा, ये अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट होगा। तो अगर मैंने तेरे को कभी भी क्वेश्चन पूछा आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, तेरे को स्टेप्स याद रखने हैं। आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ, इट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट। आई होप झेपिंग बड़ी। तो अब मेरे को बताओ चौथे से मैं आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट में हूं या अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट में हूं? अनकरेक्टेड। अब मेरे को बताओ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट को क्या करना चाहिए? अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, अब मेरे को बताओ मैनेजमेंट ने कितना करेक्ट किया? 4 करोड़। ओके, अब मेरे को बताओ कितना आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट कितना था? तो अनकरेक्टेड कितना बचा? 6 बचा। अब मेरे को बताओ मटेरियलिटी कितनी है? ओके, 8 करोड़। ये तो कम ही है ना? अभी ये तो मैनेजमेंट भी शाना निकला ना। पर यहां पर स्टैंडर्ड बोलता है ऐसे ऐसे नहीं जाने का आगे, यहां पर वापस मटेरियलिटी को क्या करो? रीअसेस करो। अब यहां पर दिमाग लगा, आखिरी पढ़ाओ। ओके, ये वापस दिमाग लगाना पड़ेगा। रीअसेस करना मतलब क्या करना? रीअसेस मतलब क्या? रिवीजन या परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस या रिवीजन? ओके, काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, बट रिवीजन करना और परफॉर्मेंस करना ये दोनों में क्राइटेरिया अलग है। इवन रिवीजन कैन बी पार्ट ऑफ दिस वन, रीअसेस में कैन बी बोथ, कैन बी बोथ। क्या बोथ? रिवीजन भी हो सकता है, परफॉर्मेंस भी हो सकता है। समझ में कुछ आ रहा है? लेकिन ये थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगा के, स्टैंडर्ड क्या बोलता है? स्टैंडर्ड बोलता है भाई हीरोगिरी मत कर। स्टैंडर्ड बोलता है ओके, ये रीअसेस करते वक्त, ये रीअसेस मतलब एक्चुअल फिगर देख, अभी एक्चुअल फिगर देख। इतने टाइम तक तो बजट पे काम कर रहा होगा, एक्चुअल देख। अच्छा, एक्चुअल पे ही कर रहा है, ठीक है, फिर परफॉर्मेंस की क्राइटेरिया देख।
अच्छा परफॉर्मेंस भी हो गया नहीं है, लेकिन 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 जब तू रीअसेस करेगा प्रीवियस ईयर के फिगर्स भी लेने पड़ेंगे। कौन से ईयर के फिगर? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर सर जो मेरे स्कोप में नहीं था, मतलब इस साल के स्कोप में नहीं था, पिछले साल का ऑडिटर मैं ही था। ओके अब प्रीवियस ईयर का मतलब, अभी एग्जांपल आपने देखा होगा अपनी रियल लाइफ में कैसे होता है। यू हैव गिवन द बीकॉम एग्जामिनेशन, बीकॉम दिया होगा, बीएससी दिया होगा, जो भी दिया होगा। सपोज मैं फर्स्ट ईयर बीकॉम में हूँ, फर्स्ट ईयर बीकॉम में मेरे को 6 पेपर थे, 6 पेपर में से एक पेपर है एटीकेटी लगा। एटीकेटी बोलते हैं, एटीकेटी सुना है? फेल हो गया, फेल होना क्या बोलता है, कुछ तो बोलते होंगे तुम अपने इसमें लैंग्वेज में, बैक लग गया, बैक लग गया। तो 6 पेपर में से कितने में बैक लगा? एक में। क्या मेरे को सेकंड ईयर में भेजते कि नहीं भेजते? भेजते हैं ना, तो मतलब मैं पास कर दिया गया, लेकिन सेकंड ईयर में वो बैक पेपर वापस देना पड़ता ना। सेम लॉजिक पिछले साल ऐसा हो सकता है, सुन मेरी बात, लॉजिक लगा, पिछले साल ऐसा हो सकता है। ओके तुम्हारे आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट और मटेरियलिटी इसमें बहुत फर्क होगा। लास्ट ईयर का बता रहा हूं मैं, ये आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट 5 करोड़ होगा और मटेरियलिटी कितनी थी? 8 करोड़। मेरे को बताओ क्या पिछले साल तुमने इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड किया या अनमॉडिफाइड दिया? अनमॉडिफाइड, क्योंकि वो एक्सीडिंग मटेरियलिटी है ही नहीं। ओके लेकिन इग्नोर नहीं किया क्योंकि उसको करंट ईयर में भी आपने कंसीडर किया। तो भले ही कोई चीज मटेरियलिटी से ज्यादा नहीं है, अपन को क्या करना है, देखो मटेरियलिटी से ज्यादा नहीं है तो अपन इग्नोर करते हैं, लेकिन डोंट वरी कभी ना कभी वो कंसीडर की जाएगी। तो आप बोलोगे सर ये 5 करोड़ पिछले साल छोड़ दिया है, भाई अगले साल उसको वापस कंसीडर करने बोल रहा है 450। सर व्हाट इफ अगर पिछले का ऑडिटर अलग था, ये फिर डिस्कशन ही मत करो, ये पिछले दूसरे ऑडिटर का अपने को लॉजिक लगाने का नहीं है, क्योंकि अरे उसके वर्किंग पेपर थोड़ा मेरे को मिलने वाले हैं। क्या कुछ समझ में आया क्या बड़ी? तो अब क्या करने का इस साल ये 5 करोड़ ये टोटल करने का, क्या ये टोटल नहीं करने का, ये जजमेंट है भाई यार, तुम इसको पॉइंट समझो। सर फिर क्या करने का, ये 5 करोड़ के मिसस्टेटमेंट के ग्राउंड क्या थे, और अगर 5 करोड़ के मिसस्टेटमेंट का ग्राउंड और ये 6 करोड़ जो अनकरेक्टेड है, इस मिसस्टेटमेंट का भी ग्राउंड सिमिलर हो रहा है, इसका मतलब ये जानबूझकर इंटेंशनल होने की संभावना है। अब यहां पर मटेरियलिटी को अपन रीअसेस करेंगे। तो टेक्निकली सर रीअसेस करते वक्त क्या करेंगे? रीअसेस करते वक्त क्या बोलता है स्टैंडर्ड, क्या बोलता है 450 क्या बोलता है? रीअसेस करते वक्त क्या देखो, करंट ईयर का देखो या प्रीवियस ईयर भी देखो? प्रीवियस, दोनों देखो, करंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का लॉजिक समझा? प्रीवियस ईयर जो तुमने छोड़ दिया होगा उसको भी कंसिडर करो, उसको टोटल नहीं मानना होता है। आप इस अंधविश्वास में मत रहिए, टोटल नहीं करना है, टोटल नहीं करना है। क्या करना है समझ में आ रहा है? उसका नेचर दिखना, उसमें से कौन सा आइटम है, कौन सा मिसमैच है, ये टोटल करिए। एंड वंस दैट इज डन तो रीअसेस हो गया तुम्हारा। तो रीअसेस करने के बाद, सुनिए मेरी बात, रीअसेस करने के बाद दो सिचुएशन। ओके रीअसेस हुआ और रीअसेस करने के बाद 6 करोड़ और मटेरियलिटी मिली, ओके 5 करोड़। तो मेरे को बताओ क्या हुआ? रीअसेस करने के बाद ओके अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट 6 करोड़ है और मटेरियलिटी 5 करोड़ है। ओके मेरे को बताओ क्या है ये? मटेरियलिटी 5 करोड़ है और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट 6 करोड़ है, मतलब एक्सीडिंग है, मतलब मटेरियली मिसस्टेटेड है। ओके इसका एक आंसर देंगे। और दूसरा एक ऐसा हो सकता है 6 करोड़ है और मटेरियलिटी आपने 8 करोड़ ही रखी हुई है। तो मेरे को बताओ इस केस में मिसस्टेटमेंट है क्या? नहीं। इस केस में किधर चले जाओगे? 700। 700 मतलब कौन सा? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अभी आपके दिमाग में सर ये 6 करोड़ पर बचा है ना, चिंता क्यों कर रहा है, अगले साल आएगा ना। अगर ये रिपीटेटिव हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये नेचर वाइज देखना है। तो सर इसमें मेरे को बताओ ये स्टैंडर्ड आगे बढ़ने कब बोल रहा है? ये स्टैंडर्ड आगे कब बढ़ने बोल रहा है? जब ओके जब कौन सा मिसस्टेटमेंट? अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट exceeds uncorrected misstatement exceeds materiality which is reassess. Uncorrected misstatement exceeds materiality which is reassess. ये समझ में आया? ये मेरे भाई और बहनों फ्लो समझा क्या एवरीबॉडी कि नहीं समझा? ओके अच्छा मेरे को बताओ इधर तक थ्योरी तक तो समझा था, कम्युनिकेट मैनेजमेंट टू करेक्ट, मैनेजमेंट ने करेक्ट कर लिया, मैनेजमेंट ने कुछ चीजें करेक्ट नहीं की, तो अपन अभी कौन सी चीज ले रहे हैं? करेक्टेड या अनकरेक्टेड? अनकरेक्टेड। अनकरेक्टेड करते वक्त स्टैंडर्ड क्या बोलता है? क्या ध्यान में रख, खाली करंट ईयर मत ध्यान में रख, प्रीवियस ईयर को यूज कर। प्रीवियस ईयर को यूज करना मतलब टोटल करना नहीं होता है, ये समझ में आया? प्रीवियस समझना पड़ेगा आपको, अंडरस्टैंडिंग जजमेंट लगा, नेचर कैसा है, ये कितनी बार हो रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है, मैनेजमेंट जानबूझकर कर रहा है क्या, फ्रॉड रिस्क फैक्टर है क्या, ये एनालाइज कर। आई होप इधर तक झेपिंग पक्का। ये होने के बाद अब मेरे को इसमें बताए, इस लॉजिक को अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो होगा इसको कंपेयर किसके साथ करेगा? मटेरियलिटी। पर ये मटेरियलिटी कौन सी है? ओरिजिनल मटेरियलिटी सेट की हुई है या रीअसेस्ड है? रीअसेस है। रीअसेस बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर। एग्जांपल रीअसेस कैन बी बेस्ड ऑन एक्चुअल फिगर्स, रीअसेस कैन बी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स डेटा आल्सो। ये रीअसेस समझा? रीअसेस बहुत बड़ा स्कोप है, समझा पक्का? तो रीअसेस किया। अब मेरे को बताओ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट एक्सीड्स मटेरियलिटी, तो अभी तो फिर डर ही है ना, लेकिन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट डज नॉट एक्सीड मटेरियलिटी, स्टैंडर्ड इज ओवर, खत्म कर लीजिए। लेकिन इफ इट इज अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इज एक्सीडिंग मटेरियलिटी, क्या करिए?
ओके अब पांचवा पॉइंट देखो, सीएमसी मैनेजमेंट को बोल के थक गए, मैनेजमेंट करेक्ट करने को रेडी, किसको जाके बोलिए, TCWG कम्युनिकेट करिए कि ये भाई ये मिसस्टेटमेंट है, ये अनकरेक्ट मिसस्टेटमेंट है, TCWG देख लीजिए ये अनकरेक्ट मिसस्टेटमेंट है, आपको रिपोर्ट दे दी है, इसके बेसिस पे मैं क्या करने वाला हूँ, ओपिनियन को मॉडिफाई। अब TCWG के साथ तुम्हारा डिस्कशन निगोशिएशन कुछ हो सकता है, निगोशिएशन कैन बी लाइक दिस, निगोशिएशन कैन बी, TCWG बोलता है सर आपके लिए इसमें से जो एक आइटम है, एग्जांपल इसमें से आपका एक आइटम है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी मिसस्टेटमेंट में इन्वॉल्व है, TCWG आते बोलता है देख ऑडिटर, आई नो इन्वेंट्री में मिसस्टेटमेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से हमारे बिजनेस मॉडल के लिए इन्वेंट्री मटेरियल नहीं है, इन्वेंट्री मटेरियल नहीं है, बिकॉज मे बी दिस ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विस इंडस्ट्री। एग्जांपल आप आके बोलोगे सर हमें सर आपकी इन्वेंट्री, बुक्स की इन्वेंट्री बताइए, अरे बुक्स की इन्वेंट्री है लेकिन बुक्स की इन्वेंट्री में अगर कुछ झोल मिल रहा है, मेरे लिए वो मटेरियल नहीं है, मेरे लिए क्या मटेरियल है सर्विस इंडस्ट्री में, ओके सेल्स परचेज, ये मटेरियल है। इन्वेंट्री में 19-20 हुआ चलेगा, क्योंकि इन्वेंट्री इज नॉट व्हाट आई एम सेलिंग टू यू, लेकिन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या मटेरियल है, इन्वेंट्री। तो TCWG आके आपको बता सकता है कि भाई आपने जो आइटम पकड़ा हुआ है ये हमारे लिए मटेरियल नहीं है, ओके। और ऑडिटर बोल सकता है ओके अगर ये मटेरियल नहीं है तो एक काम करिए आप मेरे को WR दे दीजिए, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दिए, अगर आप मटेरियल नहीं है बदल रहे तो लिख के दे दीजिए मटेरियल नहीं है, और मैं उसके बेसिस पे आई कैन यूज फॉर ए ओपिनियन। और ऑडिटर को लग रहा है नहीं भाई इसने WR दिया तो भी ऑडिटर का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो फिर तुम्हारे हिसाब से यानी लास्ट पॉइंट किसके ऊपर चॉइस रखा हुआ है, ऑडिटर, लेकिन ऑडिटर को किसके साथ डिस्कस करके करना है क्लोज, TCWG। तो TCWG से अगर नेगोशिएशन करते वक्त समझ में आ रहा है कि मटेरियल नहीं है, तो कैन ऑडिटर डिसाइड दैट इट इज नॉट मटेरियल, आंसर इज यस, ओके। ये हो गया 450, आई होप झेपिंग बड़ी, तो ये 450 की कहानी है, तो आई होप 450 का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। तो 450 में कहानी में मालूम है 2 जगह एंट्री है, हीरो 2 जगह आ रहा है, कहां पर आ रहा है, मिसस्टेटमेंट है हीरो अपना, मिसस्टेटमेंट कहां कहां आ रहा है, फर्स्ट से आ रहा है और फोर्थ से आ रहा है, बस फर्स्ट में उसका नाम क्या हो रहा है, आइडेंटिफाइड, फोर्थ में उसका नाम क्या हो रहा है, अनकरेक्टेड, और तीसरा और एक नाम जो इसमें नहीं है लेकिन छुपा हुआ हिडन एडजस्टमेंट है, नहीं परफॉर्म मटेरियलिटी है, मटेरियलिटी मिसस्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट कौन से होते हैं, जिसमें ऑडिटर को अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है, समझा बड़ी, पक्का, ओके, आई होप क्लियर है बड़ी, ओके। सर अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट 31 मार्च के बाद मिलते हैं तो उस सिचुएशन में बुक्स फ्रीज होने के कारण करेक्शन कैसे हो सकते हैं बुक्स में, मटेरियल मिसस्टेटमेंट 31 मार्च को मिलते हैं, 31 मार्च को बुक्स फ्रीज नहीं होते, 31 मार्च को बुक फ्रीज नहीं होते, यश बुक फ्रीज होंगी एग्जाम्पल 15 अप्रैल को, अपना ऑलमोस्ट उस तक वहां तक अपना कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है कि भाई रेक्टिफाई करना है। अभी इसमें आपके दिमाग में भी होगा कि सर व्हाट इफ 15 अप्रैल के बाद कुछ मिसस्टेटमेंट मिला, पॉसिबल है कि अच्छा अपनी ऑडिट रिपोर्ट कौन से डेट को गई थी, डेट याद होगी 28 अप्रैल, 28 अप्रैल याद है, मिसस्टेटमेंट सपोज 22 अप्रैल को मिला, तो क्या करने का, सब्सिक्वेंट 560, ये उनको बोलने का भाई इसको रेक्टिफाई करो, और वापस वो बुक्स को क्लोज करेंगे। यानी बुक्स कितने बार क्लोज हो सकती है, 2-3 बार, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिजोल्यूशन पास कर दिया इधर, दे हैव एक्सेप्टेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन 15 अप्रैल, पर 22 को मिला, 22 को मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ समझाया, TCWG के साथ समझाया, TCWG को बोला ये देखो ये गलत है, ये जजमेंटल गलत है, TCWG मैनेजमेंट को बोल सकता है रेक्टिफाई कर सकता है, और 22 अप्रैल को अगेन ओके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर TCWG क्या कर सकता है, रिजोल्यूशन पास करेगा, दे में एक्सेप्ट, जरूरी नहीं है पूरा रिजोल्यूशन है, खाली एक हो सकता है, एक छोटा सा अमेंडमेंट है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजोल्यूशन पास करेगा खाली एक अमेंडमेंट के लिए, या पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में काफी हद तक अमेंडमेंट है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरा रिजोल्यूशन पास करेगा एक्सेप्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। आई होप यश क्लियर है, आई होप ये लॉजिक बेटा बड़ी पंडर लोग, ओके। तो आई होप ये लॉजिक बेटा ना कि अगर वो करेक्शन करने बोला वो बाद में हो गया होगा, कैसे हो गया, क्या लॉजिक हो सकता है, तो ये किसमें मैनेज हो जाएगा, 560, ये तो छोड़ दो, ऑडिट रिपोर्ट 28 अप्रैल को बना, ओके, ऑडिट रिपोर्ट 28 अप्रैल को बना, और 19 जून को एजीएम है, वापस अगले साल अपन एक ही एजीएम का डेट रखेंगे, 19 जून 25 को एजीएम है। अब मेरा क्वेश्चन है 19 जून 25 को एजीएम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो तब जाएंगे ना लोगों को, ऑडिट रिपोर्ट भी तब जाएगी लोगों को, लोग मतलब कौन, स्टेक होल्डर, ऑलमोस्ट इसके 1 मंथ पहले अपने को देना पड़ता है, याद है ना, किसके साथ, नोटिस के साथ, तो टेक्निकली कब जाने वाली है शेयर होल्डर के पास, 19 में नोटिस के साथ देना पड़ता है, बड़ी सेक्शन 136 137 कंपनी एक्ट के, तो नोटिस के साथ लोगों को देंगे, लोग देख लेंगे। इमेजिन करो 28 अप्रैल हो गया, उसके बाद मां कसम एक ऐसी सिचुएशन आई जो मेरे को मालूम पड़ा ये तो गलत है, ओके सर क्या हो गया, अरे एक ब्रांच है वो टोटल में ऐड करना ही भूल गए ये लोग, सेल्स लिया, सेल्स में सर पॉसिबल, अरे ह्यूमन एरर इज ऑलवेज पॉसिबल ना, अच्छा फ्रॉड करना होगा तो मतलब तेरे को 2-4 साल के बाद मालूम पड़ेगा कि ये ब्रांच ऐड नहीं हुई है, कि ब्रांच 3 की, ओके ये आई होप ये समझ में आ रहा है।
लेकिन अगर ये एरर है तो एरर तो कभी भी मालूम पड़ सकता है ना, तो तब एरर मालूम पड़ा दो 28 अप्रैल मतलब 15 मई को एरर मालूम पड़ा दो, क्या करने का? ओके 560। अच्छा सर ये छोड़ दो, 19 जून को चला गया, रिपोर्ट चला गया, जिंदगी सेट हो गई, 2 साल के बाद मालूम पड़ा माँ कसम 2 साल के पहले वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओ शिट, अरे तड़प गया मैं, तड़प गया मतलब ठुक जाएगी। 447 सुना है, सेक्शन 447 फ्रॉड की लाइबिलिटी 10 साल के लिए अंदर। सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट मिनिमम 3 साल, पब्लिक फ्रॉड भयंकर हुआ तो 10 साल तक भी जा सकता है, और जितना पेनल्टी है तुम्हारा, वो पेनल्टी जितना तुमने फ्रॉड किया होगा मल्टीप्लाई बाय 3 उतनी पेनल्टी दे, मतलब कमाएगा, मतलब ग्लास थोड़ा खाया, ओके खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12 आना, वैसा कॉन्टेक्स्ट होगा तुम्हारा, 12 आना मतलब 3 टाइम बराबर। ओके आई होप ये लॉजिक बैठा गया। अब इमेजिन करो फिर तुम्हारे लिए दिक्कत है, 2 साल के बाद मालूम पड़ा, सो 2 साल के बाद फिर क्या करेंगे? 2 साल के बाद वापस मैनेजमेंट को बोले मैनेजमेंट ये गड़बड़ है, रेक्टिफाई करो, तो क्या मैनेजमेंट वापस रेक्टिफाई करेगा? यस, सेक्शन 130 एंड 131 कंपनी एक्ट के 130 एंड 131 रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके पिछले सालों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पिछले 8 सालों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं रिवाइज कर सकता हूं जब मन किया। मन किया मतलब ऐसा मन किया रिवाइज नहीं है, जब मन किया मतलब अगर आपको लगता है कि वो 2 चीज का कंप्लायंस नहीं करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई बरोबर नहीं किया होगा, उसके इंटरप्रिटेशन इशू आए होंगे, या सेकंड बोर्ड रिपोर्ट में कुछ रिवीजन है, तो बोर्ड किसके पास जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके पास जाएगा? ट्रिब्यूनल। ओके हमने शेयर होल्डर को 2 साल पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबको दे दिए, लेकिन हम चाहते हैं उसमें रिवीजन करना, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये लिफो फिफो ये इसमें एरर आ गया था हमारा, ट्रिब्यूनल फिर इसकी सुनवाई करेगा, 3 महीने लगते, ट्रिब्यूनल फिर बाद में आएगा, ट्रिब्यूनल बोलेगा ओके ये ले लीजिए, फिर आप वो रिवीजन करोगे, फिर ऑडिटर वापस उस ऑडिट रिपोर्ट को साइन करेगा और उसके बाद ट्रिब्यूनल को देगा, ट्रिब्यूनल ओके करेगा, फिर पब्लिक नोटिस देंगे न्यूज़पेपर में, और उसके बाद सबको मालूम पड़ेगा वापस। ओके ये तरीका, ये 560 बताता है अपने को, 560 कैसे करने का, आगे करने का लॉजिक ये है। तो आप ये चिंता ही मत करिए कि भाई अगर आगे कुछ इशू आए तो, आगे कुछ जाए तो हर चीज के लिए ऑप्शन है। हाँ लेकिन अगर मैनेजमेंट जानबूझकर ये फ्रॉड कर रहा होगा तो फिर तो फंसने वाले चांसेस है। अभी इमेजिन करो 2 साल के बाद तुमको मालूम पड़ा साला ये गड़बड़ था, ओके मैनेजमेंट को जाके बोला अरे मैनेजमेंट अरे गड़बड़ था यार वो 2 साल पहले, मैनेजमेंट बोला जो उखाड़ना उखाड़ ले, मैं तो नहीं करता। ओके शेयर होल्डर ने विश्वास कर लिया है, मार्केट रेट बढ़ गया है, मार्केट रेट 2000 रुपये ऊपर चला गया है भाई मेरा, मैं नहीं मॉडिफाई करता, मैं मॉडिफाई ही नहीं करता, क्योंकि अगर मॉडिफाई किया मार्केट तो तहलका मचेगा कि देखो कितना भी रहा तो सामने वाले को क्या लगेगा, क्या हुआ ये फ्रॉड, तो बड़े माँ कसम मार्केट गिरेगा, मेरा प्राइस गिरेगा, मैं नहीं चेंज करता, मैनेजमेंट बोल रहा है। अब क्या करने का, कुछ ऑप्शन नहीं है, लीगल ओपिनियन लेना होगा, क्योंकि इधर खाई है इधर कुआ है, देख किधर कूद सकता है, क्योंकि टेक्निकली अब मैनेजमेंट अगर नहीं कर रहा है, इसका मतलब कल अगर कुछ पकड़ा गया तो कौन फंसेगा? ऑडिटर। और अगर तुम खुद होके बोल दिए, प्रॉब्लम है तुम्हारे अगेंस्ट आईसीआई में कंप्लेंट जाएंगी अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि क्लाइंट ने आपके ऊपर विश्वास करके, आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल विश्वास करके आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की। तो क्या कॉन्फिडेंशियलिटी बाईपास कर सकते हैं? किस हद तक कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? आप बोलोगे सर लॉ रेगुलेशन बोलेगा तो बाईपास हो सकती है, इधर लॉ रेगुलेशन नहीं बता रहा, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट। ओके ये आपको देखना, और ये शायद आपको मालूम होगा गिल्टी इन प्रोफेशनल इथिक्स, अगर आपको मालूम है 2 शेड्यूल होते हैं, सेकंड शेड्यूल जो आएगा, सेकंड शेड्यूल आएगा उसमें फर्स्ट क्लॉज वही है कि आपने डिस्क्लोज कर दी कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, अगर लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं थी, सर ये तो लॉ की रिक्वायरमेंट है, लॉ ने किधर बोला? फ्रॉड मालूम है, एविडेंस है क्या तुम्हारे पास? नहीं, अपन कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो इट्स टेक्निकली पॉइंट, बट आई होप 450 इज नाउ क्लोज इट आउट। तो कैन वी क्लोज ऑन 450 बर्डी? ओके तो 450 एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ओके आ जाइए 450 के ऊपर पेज 3.20 पे आ जाइए, इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट। इसमें नंबरिंग जो दिए हुए वो पर्टिकुलर पॉइंट पे दिया है, पर सीक्वेंस आपको बैठ जाएगा। पहला पॉइंट 450 बोलता है इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट। ड्यूरिंग ऑडिट मतलब उस साल का ही। तो ऐसे 450 डील्स विद ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ क्या नाम मिल रहा है? इफेक्ट ऑफ क्या? आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट ऑफ ऑन ऑडिट एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वर्डिंग को बैठाओ। आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट बैठा गया दिमाग में, लेकिन ये किस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं, ऑडिट, क्योंकि अपना ऑडिट अभी तक ऑनगोइंग है। और अनकरेक्ट मतलब अभी क्या वो रेक्टिफाई करने वाला है क्या? नहीं, तो इसका इफेक्ट किस पे होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कभी भी आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट है उसका इफेक्ट किस पे देखते हैं अपन? ऑडिट पे। और जब भी अनकरेक्टेड होता है उसका इफेक्ट कब तक किस पे देखते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसलिए तो अपन बोलते हैं रीअसेस मटेरियलिटी। रीअसेस मटेरियलिटी नहीं होता तो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं होता, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखना है। ओके यानी आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट साल में कितनी बार मिलेगा बेटा? आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट कितनी बार मिलेगा? अरे हर महीने मिल सकता है,
हर महीने आप उसको अरे टाइमली सॉल्व करोगे तो काम होगा, और ईयर में जाके कौन से मिसस्टेटमेंट को देखने का है, अनकरेक्टेड। तो हर महीने आप आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट बोलोगे, कुछ चीजें अनकरेक्ट रहेगी, लास्ट में जाके काम होगा। ओके, भारत माता की झेपा बड़ी। सेकंड, ऑब्जेक्टिव ऑडिटर। ओके, ऑब्जेक्टिव ऑडिटर आपको ऑलरेडी पता चल गया, दो ऑब्जेक्टिव है। ओके, दो चीज को डील करना, इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड, इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बड़ी। ओके, आता है अभी अपना मेन थर्ड पॉइंट। एक्चुअली थर्ड पॉइंट इज नथिंग बट फर्स्ट पॉइंट अपने लॉजिक से। समझ में आया? मेरे सीक्वेंस में मैं बात कर रहा हूं तो कौन सा थर्ड इज, समझा गया? लॉजिक समझा गया? पहला और दूसरा तो स्कोप है ना, ऑब्जेक्टिव है ना रे। तो अब आते हैं फर्स्ट। अच्छा सच में मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़बड़ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना कि मैं पागल, मतलब अरे मैं कुछ भी बड़बड़ कर जा रहा हूँ, मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है ना बड़ी? ठीक है, तो ये कौन सा आंसर, ये पॉइंटर कौन सा है? फर्स्ट, एक्यूमुलेशन ऑफ मिसस्टेटमेंट। तो मेरे को बताइए, ऑडिटर शैल एक्यूमुलेट मिसस्टेटमेंट। एक्यूमुलेट मतलब टोटल, आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट अदर देन दोज आर क्लियरली ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब ₹1 का मिसस्टेटमेंट, क्या ले रहा है उसको टोटल, समझ में आ रहा है? ट्रिवियल मतलब इग्नोर, लीस्ट इंपॉर्टेंट, मिनिमम नहीं बोल रहा हूं, ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब उसका इफेक्ट कुछ नहीं है, उसका लेना देना नहीं है। ओके, दैट इज कॉल्ड ट्रिवियल। आई होप एवरीबॉडी क्लियर? ओके, तो ट्रिवियल वाले आइटम को क्या कर सकते हो आप, छोड़ सकते हो। ओके, मैंने आपको सुबह क्या बताया था, एक चीज आपको समझाई थी, अगर आपको याद होगा, मतलब अभी स्टार्ट करते वक्त मैंने बोला था आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट 3 जब डिवाइड करोगे तो कंपेयर करोगे मटेरियलिटी के साथ। तो जब लाते वक्त आई टोल्ड यू इन्वेंट्री में 1 लाख रहा तो 80,000 वाला था, और दूसरा अगर मैंने मटेरियलिटी सेट ही नहीं की है तो अपन तो सब लेंगे, लेकिन उसमें 10 रुपये आया तो ट्रिवियल। समझ में आया? क्योंकि अपने मटेरियलिटी सेट नहीं की है तो अपने को सब कुछ कंसीडर करना है। अरे लेकिन 10 रुपये को किधर टोटल में डाल रहे रे? ओके, लेकिन ध्यान रखना 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपये करके सब में वैसा टोटल बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बट वो लॉजिक है। आगे वाले तीनों स्टेटमेंट आई होप ये तीनों आपको याद रहेंगे, फैक्चुअल, जजमेंटल, प्रोजेक्टेड। ये तीनों क्लियर है बड़ी? मिसस्टेटमेंट, फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट वो है जिसमें कोई डाउट नहीं होता क्योंकि वो दिखता ही है। जजमेंटल मिसस्टेटमेंट ये है डिफरेंस अराइजिंग बिटवीन जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट कंसर्निंग अकाउंटिंग एस्टिमेट दैट ऑडिटर कंसीडर अनरीजनेबल, यानी ऑडिटर के हिसाब से वो क्या है बेटा, अनरीजनेबल, और सिलेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी दैट ऑडिटर कंसीडर इनएप्रोप्रिएट। एग्जांपल, तुमने ओके कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी कंसीडर की होगी, ओके वो ऑडिटर के हिसाब से क्या है, अप्रोप्रिएट नहीं है। ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसके लिए आपने जो पॉलिसी देनी चाहिए, रिजर्व्स के लिए जो पॉलिसी देनी चाहिए वो बराबर नहीं है आपकी। ओके, प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट मिला है या आपने प्रोजेक्शन किया है तो वो भी एस्टिमेट ही है, लेकिन वो एस्टिमेट टुवर्ड्स पॉपुलेशन है। तो इसीलिए वर्डिंग ध्यान रखना, ऑडिटर्स बेस्ट एस्टिमेट मिसस्टेटमेंट इन पॉपुलेशन involving projection of misstatement identified in audit samples to ensure entire population from which sample is drawn. I hope ये क्लोज हो गए। तो 3 तरह के मिसस्टेटमेंट कौन से होते हैं, फैक्चुअल, जजमेंटल, प्रोजेक्टेड। तो आइडेंटिफाइड और अनकरेक्टेड क्या है, आइडेंटिफाइड और अनकरेक्टेड क्या है? आइडेंटिफाइड भी मिसस्टेटमेंट है, अनकरेक्टेड भी मिसस्टेटमेंट है, अनडिटेक्टेड भी मिसस्टेटमेंट है, प्रोजेक्टेड भी मिसस्टेटमेंट है। तो कौन सा कब लिखना है, कौन सा कब यूज करना है, कौन सा कब करना है, कौन सा कैसे करोगे? क्वेश्चन में मेरे को कौन सा करना होगा, कैसे समझेगा? ये 3 कब करने के, ये जब एक्यूमुलेट करोगे ओनली। ये 3 क्यों कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन के लिए नहीं कर रहे, ये 3 इसलिए कर रहे हैं ताकि हम क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सके। पर ये 3 किस में से आए हुए हैं, ये कब करने हैं, कब करने हैं, आइडेंटिफाइड को करने हैं, अनकरेक्टेड नहीं करने हैं। तो अगर मैंने आपको सवाल पूछा है, ओके देयर ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड द मिसस्टेटमेंट ड्यूरिंग द ऑडिट, ओके ऑडिटर वांट टू रिपोर्ट दिस मिसस्टेटमेंट टू मैनेजमेंट, बट बिफोर रिपोर्टिंग ऑडिटर शुड डिवाइड दिस मिसस्टेटमेंट इन सर्टेन एरियाज और सर्टेन क्राइटेरियाज। व्हाट आर दोस क्राइटेरियाज? तो ये 3 क्राइटेरिया किसमें है, किसके है, आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, दिमाग में रिटन रहेगा। ठीक है, आगे ये चौथा पॉइंट है, मतलब ये मेरा सेकंड पॉइंट है सीक्वेंशियली मेरे लॉजिक से। Consider identified misstatements as audit progresses. The auditor shall determine whether overall or strategy and audit plan need to be revised. भारत माता की झेपा। तो और मेरा क्वेश्चन है, क्या स्ट्रेटजी और प्लान को रिवाइज करना पड़ सकता है? कारण बताइए, कितने कारण थे? 2। कौन से 2 कारण है? पहला, द नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, वर्डिंग का ध्यान रखना। नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ देयर ऑकरेंस इंडिकेट दैट अदर मिसस्टेटमेंट मे एग्जिस्ट। समझा क्या? ओके, परचेज में है, सेल्स में है, तो हमको लग रहा है अभी इन्वेंट्री में भी हो सकता है, लॉजिक बैठा। दूसरा, जजमेंटल है, तो ऐसा हो सकता है दूसरे में भी इशू आएगा। एग्जांपल याद है, एक मैडम का अपने डिस्कशन किया था, 13 आइटम मैडम देख रहे हैं और एक में इशू आ रहा है, तो दूसरे आइटम में भी तो इशू आने की संभावना है क्योंकि बायसनेस है।
ओके, नेचर सर्कमस्टेंसेस, ओके, ये वाले सिनेरियो, एंड दैट व्हेन एग्रीगेटेड विथ मिसस्टेटमेंट accumulated ड्यूरिंग द ऑडिट कुड बी मटेरियल। और उसके बाद और वर्ड है, और एंड नहीं है मेरे भाई और बहनों। ओके, और क्या बोल रहा है अगला, दूसरा वाला तो इजी है भाई, एग्रीगेट ऑफ मिसस्टेटमेंट accumulated ड्यूरिंग द ऑडिट अप्रोचेस मटेरियलिटी, यानी किससे किससे ज्यादा चल रही है वो, मटेरियलिटी से। पर ये मटेरियलिटी कौन सी है इधर जो डिस्कस कर रहे हैं, ये कौन सी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या असर्शन लेवल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। तो भारत माता की जय, फ्रीज करे, पक्का ध्यान रखा। तो क्वेश्चन पूछे, बड़ी क्वेश्चन ऐसा है, फैक्टर्स फॉर, थोड़ा सा याद रहेगा तो रिवीजन किया होगा तो याद होगा, फैक्टर्स फॉर मटेरियलिटी, फैक्टर्स फॉर प्लानिंग स्टेबल, मैं तो एक ही चैप्टर किया, अभी तक दूसरा चालू भी नहीं हुआ है। फैक्टर्स फॉर प्लानिंग, ओके 5, कौन सा वाला, बिफोर आरएपी वाला, 5 वाला कौन सा, ओके, एनालिटिकल प्रोसीजर बिफोर आरएपी, अदर आरएपी, ओके, मटेरियलिटी याद आया, ओके, एक्सपर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। फैक्टर फॉर प्लानिंग एज ए स्ट्रैटेजी वाला पॉइंट, स्ट्रैटेजी, फैक्टर फॉर स्ट्रैटेजी कितने रहेंगे, 5 कैरेक्टर्स ऑफ एंगेजमेंट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, डायरेक्शन ऑफ टीम एफर्ट्स, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट के रिजल्ट्स, एंड लास्ट पॉइंट इज एनटीई ऑफ रिसोर्सेज। याद आया, ओके, ये फैक्टर्स अपन ने डिस्कस किए। मेरा क्वेश्चन है, क्या प्लानिंग और स्ट्रैटेजी में मॉडिफिकेशन हो सकता है क्या, क्या प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी में मॉडिफिकेशन हो सकता है क्या, चांसेस है? तो मेरे को बताओ, ऑडिटर को कब समझेगा कि भाई ऑडिट, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी में रिवीजन करना पड़े, समझा? ओके, अगर आपने गलती से भी 300 में घुस गए ना, वापस अगले अटेम्प्ट के लिए आना पड़ेगा। ये 300 है ही नहीं, 450 है। ओके, व्हेन ऑडिट, प्लान एंड स्ट्रैटेजी नीड टू बी रिवाइज्ड। ओके, 2 आंसर, ये तुम्हारा स्क्रीन पे आंसर है, और अपन लिखेंगे एज पर 300 ऑडिट प्लान कैन बी रिवाइज बिकॉज ऑडिट स्ट्रैटेजी इज रिवाइज, ऑडिट स्ट्रैटेजी इज रिवाइज। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। तो याद रखना, ओके, क्वेश्चन समझा, ये अकेला अपनी औकात में आ सकता है। पेज नंबर 3.20 वाला समझा क्या, ऑनलाइन पढ़ लोग, ये समझा क्या, ये समझा क्या, सुमित भाई, आरुषि, सब लोग, कोमल, समझा क्या? अगर मैंने क्वेश्चन पूछा, प्लीज एंश्योर एक्सप्लेन व्हेन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान नीड टू बी रिवाइज, और एक्सप्लेन व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस व्हेन ऑडिट प्लान और ऑडिट स्ट्रैटेजी नीड टू बी रिवाइज। कितने सर्कमस्टेंसेस है? 2। ओके, ये वाला पॉइंट। अच्छा, क्या प्लानिंग में बिकॉज बिजनेस चेंज हुआ तो चेंज हो सकता है? यस। फिर केस स्टडी अगर वैसा कुछ रहा तो वो फिर 300 में जाएगा। लेकिन अगर केस स्टडी में कोई कंटेक्स्ट नहीं है, खाली ऐसा ही जनरली पूछा है, ऑडिट प्लान और स्ट्रैटेजी में रिवाइज कब करना पड़ेगा, तो रिवीजन कब लगेगा, तो इसके ऊपर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप ये समझा बड़ी। तो आपको केस टू केस कंटेक्स्ट देखना पड़ेगा, 300 में जाएगा कि 450 में जाएगा। पर आपको ये समझना पड़ेगा 450 में भी ये कॉन्सेप्ट है, कौन सा वाला, प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी। 450 में कैन वी क्लोज ऑन दिस? अगला पक्का क्लियर? सेकंड वाला, एग्रीगेट ऑफ मिसस्टेटमेंट, 8 करोड़ है, 8 करोड़ हो गए, 10 करोड़ हो गए तुम्हारे। ओके, एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द ऑडिट अप्रोचेस मटेरियलिटी। ओके, यानी ये वाला सिचुएशन, ओके, अपना 10 करोड़ हो गया है, 8 करोड़ अपन कैसे करें, अप्रोचेस क्यों बोल रहे हैं अपन? अच्छा, अप्रोचेस केस में कंफ्यूज हो रहे हो आप, तो मैं आपको बताओ, मेरे को बताओ, आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट कब लेते हैं? ओके, ईयर एंड में लेते हैं या हर महीने में लेते जा रहे हैं? हर महीने, अनकरेक्टेड बाद में देख रहे हैं, तो हर महीने में लेते लेते गए। ओके, नवंबर में जाके वो ये हुआ, जून जुलाई में नहीं हुआ ना ये, जून जुलाई। अच्छा, मेरे को बताओ, ये 10 करोड़ एक दिन का है या हर महीने का लिया है? हर महीने का। मैंने कैसे समझाया था आपको, हर महीने लेना है। आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट कैसे लोगे? हर महीने। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ईयर एंड। तो हर महीने जो करोगे, यानी ये जो स्टेप है ना, ये जो स्टेप है सेकंड वाला, ये हर महीने होने के बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो एक पॉइंट हो जाएगा, नवंबर में आ गया, नवंबर में आकर एक्सीड हो गया, जाके मैनेजमेंट को बोलो, फिर आप अगला स्टेप करो, नहीं तो अगला स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पूरा ईयर एंड हो गया, ये हुआ ही नहीं, पूरा साल हो गया, ये 2 पॉइंट हुए ही नहीं, पूरा साल हो गया, 2 पॉइंट हुए ही नहीं, स्टैंडर्ड ओवर। अरे जाना ही क्यों आगे, जाना आगे कब जाना पड़ता? जब ये दोनों में से कोई एक सिचुएशन ही नहीं हो रहा, तो आगे क्यों जाएंगे? आई होप क्लियर बड़ी। थर्ड, सीएमसी का फुल फॉर्म, कम्युनिकेट मैनेजमेंट टू करेक्ट। और ये भी आंसर ये इजी है, ये पैराग्राफ आप पढ़ लेना, मैं इसमें टाइम पास नहीं कर रहा। इसमें 2 चीज करनी है, मेरे को बताओ क्या है? मैनेजमेंट 2 चीज करेगा, क्या करेक्ट करेगा या तो नहीं करेगा? किया तो चेक करो कि वो करेक्ट हुआ है कि नहीं, और नहीं किया तो रीजन कर लो। ओके, समझा? रीजन करना है। अब मेरे को बताओ, ये तीसरा पॉइंट है मेरे लिए, ये मैं तीसरा पॉइंट कर रहा हूं इसको, है ना? तीसरा पॉइंट कैसे हुआ समझा? कि मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड चेंज किया थोड़ा सा, जो सीक्वेंस एक्चुअली सीक्वेंस है। ओके, वो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को इंडिपेंडेंट बना दो। अगली बार वो अगले एडिशन में मैं वो चेंज कर दूंगा। वो बेसिकली अभी मैंने वो जैसा अमेंडमेंट था इसलिए वैसे के वैसे रखा हुआ है। तो क्लोज करें इसको। अब मेरे को बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है। ओके,
ये 4.57, ये 4, इसकी नंबरिंग चेंज कर दो बड़ी। ओके ये 4 है, ये 5 करो, ये 6 करो, ये 7 करो, 4 5 6 7। ओके अब पहले आप ये 4 5 6 7, एक मिनट ना ये फिर रह जाते हैं। ये 4 पे आइए, इवैल्यूएटिंग इफेक्ट ऑफ विच मिस स्टेटमेंट नाउ, अनकैरेक्टर मिस स्टेटमेंट। पढ़िए, द ऑडिटर शेल व्हाट ही विल डू, रीअसेस मटेरियलिटी। एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना। ओके वो रीअसेस कैसे करेगा, अपनी मर्जी से या 320 के हिसाब से? 320 दो चीज बताता है रीअसेस के लिए। कौन सी दो चीज बताता है बेटा? रीअसेस करने के लिए दो चीज बताता है। दो मतलब कौन सी? रिवीजन और परफॉर्मेंस। अरे भाई 320 के हिसाब से करना है, आपका दिमाग नहीं लगाना है। तो दो चीज करनी पड़ सकती है। क्या दो चीज करनी पड़ सकती है? रिवीजन भी करना पड़ सकता है, परफॉर्मेंस। अच्छा मेरे को बताओ, अभी दोनों रिवीजन परफॉर्मेंस भी बता दिया मैंने भाई। रिवीजन कब करते हैं? डेटा आपने बजट लिया होगा और एक्चुअल में फर्क आ रहा होगा। और परफॉर्मेंस कब करते हैं? एग्रीगेट ऑफ अनडिटेक्टेड एंड अनकरेक्टेड। तो अगर परफॉर्मेंस करनी है तो आपको ऐसा मालूम होना चाहिए कि इसमें एविडेंस नहीं मिला है। क्वेश्चन में आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें मेरे को क्या नहीं मिला है, एविडेंस नहीं मिला है। तो इसलिए उसके ऊपर स्टेप्स लेंगे बड़ी। डन बड़ी? ठीक है, तो अब देखिए उसके अंदर क्या देखे, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आर मटेरियल इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट। ये लाइन समझी क्या? अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट क्या है? मटेरियल है, आइदर वो इंडिविजुअली और एग्रीगेट। इन मेकिंग दिस डिटरमिनेशन ऑडिटर शैल कंसीडर साइज एंड नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट एंड इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रायर पीरियड्स। क्या ऑडिटर को प्रायर पीरियड्स के भी मिसस्टेटमेंट देखने पड़ सकते हैं? यस। तो क्या उसके स्कोप में है? यस, क्योंकि वो उसको रीअसेस करने के लिए काम आएगा। डन बड़ी? ओके अच्छा, ये भी अपनी औकात में क्वेश्चन आ सकता है, ये भी अपनी औकात में क्वेश्चन आ सकता है, तो मेक श्योर ये ध्यान रहे। तो तीसरा, दूसरा, चौथा रिलेटिवली स्टेबल रखिए। पांचवा, कम्युनिकेशन विद टीसीएफ जी। क्या करने का? टीसीएफ जी को बोलने का भाई इसका इंपैक्ट मेरे ओपिनियन पे आने वाला है, 705 होने वाला है। फिर टीसीएफ जी बोलेगा वो ऑडिटर नहीं बैठ रहा, क्या मांगो? WR। एंड WR के बाद अल्टीमेटली आप अपने हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन कर लो। क्लोज करें बड़ी? अच्छा डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या करेंगे? तो डॉक्यूमेंटेशन में अपन क्या क्या लिखेंगे अपने डॉक्यूमेंटेशन, हाँ 450 का डॉक्यूमेंटेशन, ताकि हम ये प्रूव कर सके कि 450 फॉलो किया कि नहीं किया। तो सर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कौन से ऐसे मिसस्टेटमेंट थे जो ट्रिवियल थे, क्योंकि अपने उसको छोड़ा है ना, तो वो अपने को लिस्ट बनानी पड़ेगी। सेकंड, मिसस्टेटमेंट एक्युमुलेटेड ड्यूरिंग ईयर वेदर दे हैव बीन करेक्टेड। ओके यानी कौन से मिसस्टेटमेंट है? बी में आइडेंटिफाइड। और सी में द ऑडिटर्स कंक्लूजन वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आर मटेरियल इंडिविजुअली और एग्रीगेटेड एंड बेसिस फॉर दैट कंक्लूजन। यानी ऑडिटर बोल रहा है ये मटेरियल है और ये बोल रहा है नहीं मटेरियल है, तो क्यों नहीं बोल रहा है? तो टीसीएफ जी का WR वगैरह वगैरह जो भी रहेगा। भारत माता की जय हिंद। तो 450 का लॉजिक आई होप 450 अच्छे से समझा होगा, 450 का लॉजिक भी तुम्हारे दिमाग में बैठा होगा। ओके इसके लिए क्वेश्चन कर लेना। ओके 450 के कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन कर लेना एक, एंड दैट इज MTP 2 November 24 क्वेश्चन 5B। पर ये ऐसे कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, पर फिर भी वो रिलेवेंट हो, इसके लिए रिलेवेंट हो जा रहा है, तो इसके लिए अपन इसको यूज कर रहे हैं। तो ये आप क्वेश्चन एक और एक सॉल्व कर लेना MTP का, MTP 2 November 24। ओके क्वेश्चन 5B। ओके ये वाला पॉइंट अपन क्लोज कर लेंगे कल के इसमें। ओके आई होप दैट इज डन विथ 450 की कहानी खत्म करते हैं। ओके अब आते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, दैट इज योर चैप्टर 1। चैप्टर 1 फोकस ऑन 2 स्टैंडर्ड्स, वन इज SQC 1 एंड वन इज SA 220। वेरी इजी चैप्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको है ना थोड़ा सा ओके अलर्टनेस रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस चैप्टर 100